गुरुदेव पावित्र्य दिया गुरु दासे उनके सकल सम्मान कोई देश करते देहनाता जग जाता सकल सम्मान कोई देश करते देहनाता जग जाता तबे तो गाइबो हरिनाम सुखी अपराध अभिघात तबे तो गाइबो हरिनाम सुखी अपराध अभिघात गुरुदेव कृपा बिंदु दिया दासे गुरुदेव पावित्र्य दासे करे राम कृपा लोभी आई जाए करे कृपा लोभी आई शक्ति बुद्धि আমি আতি করব আত্মসাম শক্তি বুদ্ধি আমি আতি করব আত্মসাম গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া কোই দাসে যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পার তোমার যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পার তোমার করুণা না হইলে করুণা না হইলে কান্দিয়া কান্দিয়া প্রাণ না রাখিব করুণা না হইলে কান্দিয়া কান্দিয়া প্রাণ না রাখিব गुरुदेव पाविंद्र दिया कोई दासे Gurudev into this sorrow just one drop of mercy. I am lower than a blade of grass. Give me all health, give me strength. Let me be as you are without desire or aspiration. I offer you all respects, for thus I may have the energy to know you correctly. Then, by chanting the holy name in great ecstasy, all my offenses will cease. When will such mercy fall to this one who is weak and devoid of intelligence? Allow me to be with you. If you examine me, you will find no qualities. Your mercy is all that I am made of. If you are not merciful unto me, I can only weep, and I will not be able to maintain my life. Holy complexion has descended with his brother, the Avadhuta Nityananda. Together they had overwhelmed all of Nadiya's with divine ecstasy. Sri Chaitanya, who is Krishna himself, the son of Nanda, has saved the world by freely distributing his own holy name. Go also and receive your deliverance. Oh Lord, hearing those words, Bhaktivinoda has come weeping to the souls of your lotus feet and tell the story of his life.
हे मोनादुर्मति संसार दीतो ओडियाया चिरवामी तवनि जजना कोन महाजन तवनि पांचाई दिले तू ये मोना धर्माची संसार दीतो दया करे मोरे पतित देखिया कोइलो मार गिया दया करे ओहे दीन जना शुणबानो कथा ओहे उल्लासित होइया हे मोनादुर्मति संसार दीतो ओडिया चिरवामी तुम्हारे तारे श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीपे अवतार तुम्हारे तारे तुम लोगो तो दीनहीन जाने तुम लोगो तो Srinivas. Where is such a personality as Srinivas Acharya born? He is the Lord of the universe. 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 He is the
Where are my Swarup Damodar and Rup Goswami? Where is Sanatan? Where is Raghunath Das, the savior of the fallen? Where are my Raghunath Bhatt and Gopal Bhatt? And where is Krishnadas Kaviraj? Where did Lord Gauranga, the great dancer, suddenly go? I will smash my head against the rock and enter into the fire. Where will I find Lord Gauranga, the reservoir of all wonderful qualities? Being unable to obtain the association of Lord Gauranga, accompanied by all of these devotees, in whose association he performed his pastimes, Narottam Das simply weeps. हाँ
જાણેલો પ્રેમાદન કરુણા પ્રચુર એનો પ્રભુ એના પ્રભુ પોતા ગેલા આચાર્ય Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari आनंद लीला माता जी यहाँ पे उपस्थित हैं। आनंद लीला माता जी हैं। फिर गौरांग बिहारी प्रभु को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को आदरांजलि अर्पण करें। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी परम पूज्य श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। तो आज हम उपस्थित हैं यहाँ पे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो मेरा व्यक्तिगत रूप से महाराज के साथ आदान प्रदान नहीं हुआ, लेकिन मैं जब भी दिल्ली जाता हूँ और मंदिर में जाता हूँ, अकस्मात अगर मैं मंगल आरती में पहुँचा तो मैंने हमेशा देखा कि महाराज खासकर राधा पार्थसारथी मंदिर में गौर निताय का जो गर्भगृह है उसमें ज़रूर आरती करते दिखेंगे। तो एक विशेष बात थी महाराज की कि वो किसी भी मंदिर में हो, वो भगवान के विग्रहों की सेवा में तत्पर रहते थे। अगर आप देखेंगे वो इतने बड़े महान, पूरे इस्कॉन में बहुत प्रसिद्ध और बहुत बड़े लीडर थे, पर फिर भी वो भगवान के विग्रहों की सेवा को बहुत महत्व देते थे और खुद उनकी विग्रहों की सेवा में रहते थे। तो उनका ये विशेष था कि वो जहाँ पे भी हों मंगल आरती में विग्रहों की स्वयं आरती करते थे और उनके खुद के भी विग्रह थे, उनकी भी पूजा आरती रोज किया करते थे। तो एक विशेष बात है जो महाराज की हम हमेशा स्मरण कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैंने उनके कुछ शिष्यों से सुनी है, और प्रभुपाद जी की भी एक विशेष बात थी। एक बार एक प्रभुपाद जी के शिष्य बोल रहे थे, हम सुन रहे थे, प्रभुपाद जी के समय में ऐसा नहीं होता था कि कोई शिष्य को बोलते थे कि अभी आपको बैन किया है जीवन भर के लिए। प्रभुपाद जी किसी न किसी तरीके से हर शिष्य को या हर सेवक को कोई ना कोई सेवा में जरूर लगाते थे, चाहे उसने कोई बहुत गलती भी की हो। तो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज की भी ये बहुत बड़ा योगदान है। मैंने उनके शिष्यों से बहुत बार सुना है कि उनके शिष्यों को या और जो भी भक्त थे उनको किसी ना किसी सेवा में वो जरूर
लगाते थे। वो ये नहीं बोलते थे अरे अभी आप कोई सेवा के लिए योग्य नहीं हैं, अभी आप अयोग्य हो गए हैं। चाहे उन्होंने कोई गलती भी की हो या कोई किसी के बीच अनबन भी हुआ हो, तो भी वो किसी न किसी रूप से उनको किसी और सेवा में व्यक्त करते थे। तो वो विशेष बात है, क्योंकि कृष्ण के दृष्टिकोण से, प्रभुपाद जी के दृष्टिकोण से हर जीव को मौका दिया जाना चाहिए उनकी सेवा में लगने के लिए। तो वो भी एक विशेष योगदान है। तीसरा पहलू जो महाराज जी का एक उनके शिष्य बता रहे थे कि महाराज अपने, तो एक लीडर का कैसा जीवन होना चाहिए, तो महाराज अपने ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। तो जब बता रहे थे एक बारी वो एक मंदिर में आए, मीरा रोड में, राधा गिरधारी मंदिर में। तो फिर वहाँ पे जो भक्त थे उनके साथ रात में एक बड़ा प्रोग्राम था, तो करते करते लेट हो गया, रात को 1 बज गया आते आते। तो जो उनके साथ शिष्य थे वो बोले महाराज जी मैं बहुत थक गया हूँ। तो महाराज जी बोले हाँ हाँ आप जाइए, आराम कीजिए, आप बहुत थक गए हैं। तो फिर वो शिष्य बताते हैं अगले दिन सुबह महाराज जी भी 1 बजे तक 2 बजे तक लेट आए थे, लेकिन सुबह मंगल आरती में वो आरती कर रहे थे अपने समय पे। तो बता रहे थे कि कैसे महाराज जी का विशेष बात क्या है, वो अपने जीवन में जो भक्ति के नियम है, कानून है, साधना है, उसको बहुत ही गंभीरता से, बहुत स्ट्रिक्टली करते थे। लेकिन औरों के लिए वो उनकी कितनी शरणागति है उसके हिसाब से उनको प्रोत्साहित करते थे। तो ये एक बहुत विशेष लक्षण है। जैसे हम सुनते हैं कि हमको अपने जीवन में अधिकांश समय हम दूसरों को बताते हैं आपने ये गलती किया, वो गलती किया, और अगर मैंने कुछ कमी है तो मैं बोलता हूँ ठीक है मैं थका हूँ, मैंने बहुत सेवा किया है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन महाराज जी, ये भक्त का ऐसा जीवन होना चाहिए कि अपने जीवन में वो हमेशा तत्पर रहे और दूसरों के साथ उसको भक्ति भाव या उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। ये तीसरा पहलू है। और चौथा, मैंने गोपाल कृष्ण महाराज जी का परसों के दिन उन्होंने आखिरी में 2023 दिसंबर में उनका विल लिखा था, तो उसमें बहुत सारे पहलू बताए। तो उसमें वो अपने शिष्यों को एक निवेदन कर रहे हैं कि मैंने अपने जीवन भर इस्कॉन के बाहर एक भी कदम नहीं रखा, तो मैं अपने शिष्यों से या अपने अनुयायियों से अनुरोध करता हूं कि आप भी इस्कॉन के अंतर्गत जीबीसी को मान्य रखते हुए ही कार्यकाल करें। तो ये बहुत विशेष बात है कि महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, अपने जीवन से दिखा रहे हैं कि कैसे हमको निष्ठ होना चाहिए, गुरु निष्ठ। तो वो प्रभुपाद जी के निष्ठ हैं। प्रभुपाद जी ने जो उनको सिद्धांत दिए, जो उनको शिक्षाएं दी, उसको अपने जीवन में अपनाया और साथ साथ दूसरों से भी बांटा। और वही बात वो अपने जो अनुयायी हैं उनसे भी कर रहे हैं कि आप निष्ठ रहिए, क्योंकि कलयुग में कलह बहुत ही स्वाभाविक है। कलह होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन निष्ठावान होने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो हमारे अलग अलग मत हो, हमारे अलग अलग योजनाएं हो भक्ति में, लेकिन कैसे हम इस्कॉन के अंतर्गत रहते हुए प्रभुपाद जी को प्रसन्न करते हुए उनको पूर्ण करें, ये महाराज जी की विशेष योगदान है। उन्होंने इतने सारे मंदिरों का निर्माण किया, इतने सारे अलग अलग प्रोग्राम्स, फूड फॉर लाइफ इत्यादि इत्यादि को चलाया, लेकिन कभी भी वो ऐसा नहीं सोचे कि इसमें कितनी समस्या है, कितनी पीड़ा है, लेकिन करते रहे प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए, और वही वो हम सबसे भी चाहते हैं। तो ये एक बहुत विशेष बात लगी हमको महाराज जी कि कैसे हमको निष्ठावान रहना है, और वो निष्ठावान रहते रहते हमको भगवान की और गुरु की कृपा प्राप्त होगी। तो निष्ठावान के भाव से, तो इस के अनुसार मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं भी इनमें से कुछ गुण को अपने जीवन में अपना सकूं और परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को प्रसन्न कर सकूं इन बातों से। हरे कृष्ण। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की। इसलिए गोपाल कृष्ण महाराज का एसोसिएशन, पर्सनल एसोसिएशन 2 जगह में मेरे को मिला। एक है चेन्नई टेम्पल डीटी इंस्टॉलेशन में फर्स्ट टाइम तो नज़दीक से देखा, सेवा करने के लिए मौका मिला। उस समय हम उनका पर्सनल डीटीज वगैरह देखने के लिए मौका मिला।
उस समय महाराज इतना वृद्ध थे, फिर भी इतना सुबह सुबह उठ के मंगलारती में आते। उसके बाद महाराज का बहुत सरल जीवन है। महाराज इतना बड़ा सीनियर सन्यासी है, सीनियर डिसेबल है, इतना बड़ा गुरु है, वर्ल्ड वाइड लीडर्स को सब जानते हैं, फिर भी बहुत नम्रता रहता है पर्सनल। उस समय मेरे को पता चला महाराज का इतना निकट रूप से भी सेवा करने के लिए मौका मिलेगा मेरे जीवन में। इसे बहुत बड़ा कृपालु है, दयालु है परम पूज्य गोपाल कृष्ण कुलस्वामी महाराज। दूसरा इंटरेक्शन है जीपीसी कॉलेज, जीपीसी मीटिंग होता था। जीपीसी मीटिंग के बाद मेरा सेवा था इधर खड़े रह के उनको, कोई भी जीपीसी आया तो उनको स्वागत करने के लिए। एक्चुअली जीपीसी मीटिंग खत्म हो गया, ऐसे उधर से मैसेज आते हैं, महाराज से गाड़ी नीचे खड़े रहते हैं, इतना फास्ट रहते हैं महाराज। ऐसे मैं पहले दिन देखा महाराज गाड़ी से उतरने के लिए इतना टाइम लगा, ऐसे सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ रहे। मैं सोचा मैं इधर से बैकअप रूम जाके फूल लेके आता हूँ। जैसे महाराज गाड़ी से उतरे, ऊपर आए, प्रणाम किए, उठ के आगे चले गए। मैं इधर से मैं तो भाग रहा हूँ। उस समय मेरे को अभी भी पता नहीं चला कितना फास्ट में महाराज आके प्रणाम करके सीधा चले गए। इवन दो इतना वृद्ध अवस्था में वो कंसिस्टेंसी रहते। he may be walking little bend or something, but he is consistency in his life. ऐसे सभी भक्त लोग बता रहे थे ऑफरिंग में, प्रभुपाद जी का पहला सेवा उनको मिला, उनको रूम को सेटअप करने के लिए। इनका पूरा जीवन इसमें चला गया। उनका प्रभुपाद जी का घर है, यही उनका रूम है, उसको उन्होंने प्रोटेक्ट किया, उनको रक्षा किया, उसको साफ सफाई किया, उसको देखभाल किया, यही उनका जीवन था। ऐसे हम भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ते हैं, भूगा अद्भुत वीर्यस्मिन् स्वल्पोपि संबंधः। थोड़ा मात्र ये पंचांग भक्ति से संबंध में आते हैं, उनको इतना महाशक्तिशाली बनते हैं। ये साधका का रूप में से देखेंगे तो ऐसे महाराज जी ने इतना मंदिर निर्माण किया, पृथ्वी में अलग अलग कोने में जाके प्रचार किया, खुद सेवा भी करते थे, उदाहरण बनाते थे, फिर सभी भक्तों को भी सिखाते थे अलग अलग मंदिर निर्माण करना। मैं भी सोचता था क्यों महाराज जी इस प्रकार का इतना अनेक मंदिर बना रहे हैं। उस समय मेरे को पता चला प्रभुपाद जी ने उनको आदेश दिया था। दिल्ली जो है एशिया का बहुत बड़ा स्थान है, एशिया में आसिया में बहुत बड़ा स्थान है दिल्ली है, इसलिए हमारा कृष्ण भावनामृत बहुत प्रसिद्धि से इधर फैलाना चाहिए। इसलिए परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज इतना मंदिर होने को, एक मंदिर को निर्माण करने में हमको कितना तकलीफ होते हैं हमको मालूम। एक मंदिर में पूजा पाठ सब ठीक से बनाना इतना मुश्किल है। महाराज जी इतना मंदिर नहीं। दूसरे हैं गौरंग प्रभु भी बार बार बताते हैं, ऐसे मंदिर में रहना। ऐसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज इधर रहते थे जीपीसी मीटिंग में, फिर भी मेरा रोज जाते थे, रोज सुबह आते थे। ऐसे उनका जीवन में एक नियम है, वो सिर्फ मंदिर में रहेंगे, होटल में गृहस्थ का घर में कभी भी नहीं रहेंगे। ऐसे न्यूयॉर्क में गए महाराज गोपाल कृष्ण महाराज, एंड उधर वो नया मंदिर है ना, हमारा न्यूयॉर्क भक्ति सेंटर का बगल में और एक मंदिर है, उधर उतना सुविधा नहीं है, रूम वगैरह कमरा वगैरह नहीं है। जैसे गोपाल कृष्ण महाराज गए, उनके लिए सभी भक्तगण अच्छे उनके कमरा बगल वाला घर में उन्होंने आयोजन किया था। महाराज जी बताया नहीं मैं मंदिर में रहूँगा, सभी भक्तों के साथ, सभी ब्रह्मचारियों के साथ, उधर जो भी निवासी हैं उनके साथ ही रहे महाराज। इतना वृद्धावस्था में भी महाराज उनके साथ रहे। क्यों महाराज जी आप आइए, एक हमारा अच्छा सुविधा बना के रखा है आपके लिए, सब भक्त लोग इंतजार कर रहे हैं। नहीं हम मंदिर में रहेंगे। ऐसे उनको मंदिर में रहा, दूसरे दिन उठ के मंगलारती की। ऐसे महाराज ऐसे खुद उदाहरण बनाते हैं। ऐसे महाराज जी स्वयं बताते हैं, मैंने मेरे खुद का हाथ से बहुत सारा गोविंदा रेस्टोरेंट खोले। एक गौरंग प्रभु ने बताया, मेरा खुद का हाथ से अनेक गोविंदा रेस्टोरेंट बनाया, उद्घाटन किया, एक भी गोविंदा रेस्टोरेंट में खाया नहीं महाराज।
उनका खाना जो है बहुत तपस्या वाला खाना है हमारे लिए। नमक कम रहते हैं, टीका कम रहते हैं, बहुत सात्विक आहार खाते हैं महाराज ऐसे। बट महाराज जी हजारों हजारों लाखों लोग के लिए प्रसाद बांटते हैं दुनिया भर। जैसे अनामृत, ऐसे फूड फॉर लाइफ इसका स्कीम के द्वारा, ऐसे मंदिर प्रसाद वितरण, पुस्तक वितरण के बारे में बोलने का ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे लाखों में पुस्तक वितरण किए। ऐसे महाराज जी रशिया में ऐसे अंडरग्राउंड में प्रिंट करके स्टैपलर करके उसको खुद वितरण करते थे। ऐसे एक भक्त ने बताया था, ऐसे महाराज जी एक गोल्ड रिनोन्ड बुक स्टॉल में उन्होंने प्रभुपाद जी का पुस्तक वगैरह स्टॉल लगाया था। बुक ज़्यादा बेचा ही नहीं था। ऐसे प्रभुपाद जी को उन्होंने दुखी से जाके बताया, प्रभुपाद जी ने बताया मेरा पुस्तक जो है मेरा शिष्य लोग से प्रेम से बांटा जाता है। इसलिए ये सुना प्रभुपाद जी से, खुद गोपाल कृष्ण महाराज पुस्तक वितरण करने लगे, अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाने लगे, अलग अलग जगह में स्थान में जाके स्वयं पुस्तक वितरण करने लगे। ऐसे हर साल दिल्ली में इतना पुस्तक वितरण होते हैं। ऐसे धाम में देखेंगे, ऐसे महाराज जी मंदिर में रहते, किधर भी नहीं, दूसरी जगह में रहते नहीं, वो भी मंदिर भी एक धाम है। ऐसे महाराज जैसे जन्माष्टमी ऐसा फेस्टिवल में बॉम्बे में सुबह मंगलारती में रहते हैं, दिन में दिल्ली में रहते हैं, शाम को वृंदावन में रहते हैं। उनका हर जन्माष्टमी में इस प्रकार का प्रोग्राम रहते हैं, ऐसे नॉन स्टॉप कीप मूविंग। ऐसे ऐसे साधका का लाइफ में भी कितना दुर्घटना आते हैं, कितना चैलेंजेस रहते हैं, आगे वाले भक्त लोग भी बताएंगे उनका जीवन में। ऐसे एक दिन वृंदावन मंदिर में सबके सामने एक भक्त महाराज जी को चिल्लाने लगे, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, आप लोग जी बिजी है, टिकने के और टिकने के, ऐसा ऐसा बोल के गए। इतना गुस्सा से वो जगह से निकल पड़े। ऐसे महाराज जी पूछने लगे ये भक्त कहाँ रहते हैं, उनका जहाँ ढूंढे वो जगह में स्थान में गाड़ी पकड़ के गए, उनका घर में गए, नॉक किया, उन्होंने दरवाज़ा खोला, साष्टांग दंडवत मारा महाराज वो भक्त को, मेरे को क्षमा कीजिए, आपने इतना त्रुटियाँ गलतियाँ बताए थे, ये सब गलती का कारण नहीं हूँ, मैं ज़रूर आपका पॉइंट्स को वैलिड लेता हूँ, मैं ज़रूर सबको ठीक करूँगा, मेरे को क्षमा कीजिए, मेरे को थोड़ा समय दे दीजिए मेरे को ठीक करने के लिए। यही शुद्ध भक्त का जीवन में इस प्रकार का नम्रता रहता है, यही है सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ऐसे रोहिणी प्रभु वो एक बार पूछे थे आपका सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है। ऐसे आश्रय बहुत फेमस प्रोग्राम है दिल्ली का, उसमें पूछे थे आपका सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है, मॉर्निंग प्रोग्राम। हम सुबह उठ के साधना जो करते हैं वही मेरा सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। ऐसे महाराज जी ये पंचांग भक्ति के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सब चीज़ में ऐसे महाराज जी बहुत नम्रता रहते। एक बार मैं दिल्ली मंदिर में गया था, एक सेवा के लिए गए थे, मौका मिला महाराज जी को दासानुदास भाव में सेवा करने की, इसको रिपोर्ट देने के लिए हमको बुला गए थे, आप भी आओ आपको बताएंगे। ऐसे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, ऐसा उन्होंने सेवा किया, महाराज जी ने नॉडेड हिज हेड एंड ऐसे कि फिंगर को मैंने जाके उनका चरण में बैठ गए। उन्होंने कुछ बोला नहीं, मैं सोचा कुछ बोलने के लिए बुलाया क्या है मेरे को समझा नहीं। एक्चुअली महाराज अभी वृद्धावस्था में है, इसके लिए उनको क्या होते हैं, उनको दोनों हाथ में कुछ काम किया तो उनका सलेवा जो है गिरते हैं, ऐसे गिरते हैं। ऐसे महाराज जी एक दो बार किए, रख दिए, उनको कुछ तो हाथ में दिया था, उन्होंने हाथ में लिया था, फिर वो गिरने लगे। इसलिए मेरे पास था, मेरा नज़दीक में था वो कपड़ा, उसको उठा के मैंने पकड़ा, महाराज जी नोटेड इस है। बेसिकली उन्होंने ये रूप से मेरे को कृपा दी। मैंने ऐसा इस प्रकार के समझा, ऐसे कुछ आदमी को भी इस प्रकार का कृपा देते हैं। ऐसे
उस समय मैंने पहले बताया था ना, चेन्नई में उनका ऑल्टर देखा, मैं तो इस प्रकार एक एक छोटे छोटे विग्रह रहते हैं, इतना सुंदर तरीका से मेंटेन करते हैं, इतना ऐसा नहीं है बाकी लोग सब सेवा करते हैं, महाराज जी खुद सब कुछ करते हैं। मैं भी नीचे से उठा के देने के लिए दूसरे वक्त करते हैं, बट महाराज जी स्वयं रूपा जी का अभिषेक करते हैं, सालग्राम को सब करते हैं, गौनीताई को श्रृंगार करते हैं, नरसिंह देवी को श्रृंगार करते हैं, सब कुछ स्वयं करते हैं। अभी भी लास्ट समय तक इतना प्रेम किए हैं सभी विग्रहों को, इस भक्त को भी इस प्रकार का प्रेम किए हैं। ऐसे कौन से भी भक्त को भी निराश रूप से, इस प्रकार के उदासीन रूप से कितना भी गलती किया उनको क्षमा करते हैं, स्वीकार करते हैं। एक बार एक भक्त ने जैसे 4 नियम में कुछ उनको पालन करने में थोड़ा तकलीफ हो गया था। ऐसे महाराज जी को पता चला, ऐसे ऐसे भक्त ऐसे उनको बुलाया महाराज जी ने, अरे आप इस प्रकार का है, कृष्णा आपको समान क्षमा नहीं करेंगे, इसके लिए आपको जरूर आपको साधना भक्ति में सीरियस होना पड़ेगा। ऐसे उसके बाद महाराज जी के गाइडेंस से वो भक्त अच्छे भक्त बने। उसके बाद मॉर्निंग प्रोग्राम वगैरह करने लगे, उस आसान से वो गलती से बाहर आने लगे। एक बार महाराज जी के पास बहुत बड़ा रेड हॉट कैश लेके आए थे एक भक्त ऐसे हम सोचेंगे तो अच्छा हो गया, हमारा एक मंदिर बन रहे हैं उसमें सेवा में लगा देंगे ऐसे वो भक्त ने लेके आया, महाराज जी के पास दिए, महाराज जी आपके लिए मेरा दक्षिणा है। महाराज जी बोलते हैं आपका साधना कैसे चल रहा है? महाराज वो कुछ बोल नहीं रहे थे, मैं प्रयास कर रहा हूँ महाराज में करने के लिए, मैंने आपका साधना कैसे चल रही है पहले बताओ, उसके बाद मैं लेता हूँ, स्वीकार करता हूँ। दूसरे भक्त नज़दीक में थे, महाराज जी उन्होंने अलग अलग बिजनेस वगैरह चालू किया, इसके कारण उनको थोड़ा साधना में दिक्कत हो रहे हैं। महाराज जी बोले आप साधना ठीक से करो, उसके बाद मैं स्वीकार करता हूँ। वो बहुत तकलीफ में चले गए थे वो भक्त। महाराज जी मैं जरूर करूँगा, आप कृपा करके इसको स्वीकार कीजिए। ऐसे बारंबार बोलने के बाद महाराज जी स्वीकार किए। महाराज जी बोले मैं स्वीकार करूँगा, आप अच्छे से साधना करना चाहिए, अगले बार मिलने के समय में आपको मेरे को बताना चाहिए। इस प्रकार का एक एक भक्त को भी इतना कृपालु दयालु, ऐसे इज एक्सेसिबल फॉर एवरीवन, वही बहुत बड़ा मेरे को महाराज का कृपा। ऐसे ऐसे प्रभुपाद जी का अनेक अनेक गुण को अनेक भक्त लोग स्वीकार किए हैं। ऐसे प्रभुपाद जी का अच्छे गुण को अनेक ऐसे शिष्य लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके द्वारा हम प्रभुपाद जी का भी महिमा समझ सकते हैं। इसको प्रभुपाद जी को हम देखा नहीं, ऐसे परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज का प्रिय मित्र है, ऐसा हम जयप्रकाश महाराज के साथ गोपाल कृष्ण महाराज को भी अनेक बार देखे हैं, उनका निकट मित्र है। इट्स अ ग्रेट लॉस फॉर हिज होलीनेस जयप्रकाश स्वामी महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महाराज जी को प्रार्थना करता हूँ ये दिव्य अवसर पर, जैसे वो जो उदाहरण बने, उनको उदाहरण को हमारा जीवन में उतारे, अच्छा भक्त बने, इसलिए प्रभुपाद जी का अच्छा सेवक दासान सेवा करें। क्वालिटी बता के मुझे प्रभुपाद जी की क्वालिटी जरूर है। हाँ जी, प्रभुपाद जी का मैं ऐसे सरलता है, कोई भी जाके प्रभुपाद जी को गोपाल कृष्ण महाराज को मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, उनका गाइडेंस ले सकते हैं। इतना बहुत सरल जीवन। बहुत धन्यवाद। ऐसे बहुत कुछ है। श्रील प्रभुपाद की, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की। तो सर्वप्रथम जो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का जो प्रणति मंत्र है वो हम लोग साथ में दोहराएंगे। तो मैं बोलूँगा, उसके पश्चात आप पीछे दोहरा सकते हैं। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं
यः प्रकाशस्य वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। तो इस प्रणति मंत्र में बताया है कि मुख्य रूप से प्रभुपादस्य साहित्यम यह प्रकाश्य वितीर्य च। तो महाराज जी का सबसे महत्वपूर्ण जो सेवा उन्होंने किया है वो है प्रभुपाद जी ने जो उन्हें कहा था कि मेरा जो पुस्तक है उसका प्रकाशन करना है, अर्थात पब्लिश माय बुक्स और वितीर्य डिस्ट्रीब्यूट। तो ये उनके प्रणाम मंत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो उनके जो वरिष्ठ भक्त ने जिन्होंने मंत्र बनाया है उन्होंने बताया है। और प्रकाशस्य वितीर्य और प्रचारम, तो इसका प्रचार करो। तो ये महाराज जी ने अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो अलग अलग जो सेवाओं में से ये महाराज जी ने लिया है। तो जैसे हम कई बार सुनते हैं कि कोई एक वैष्णव आचार्य होते हैं, उनके आविर्भाव से अधिक हमें उनके तिरोभाव के दिवस में उनकी महानता के बारे में पता चलता है, क्योंकि उनके आविर्भाव के समय में हमें कभी समझ में नहीं आता है कि वो भी क्या करने वाले हैं, लेकिन तिरोभाव के समय पर हमें पता चलता है कि इस महान वैष्णव ने इतना सारा चीज़ पूरे विश्व का उद्धार करने के लिए, कल्याण के लिए उन्होंने किया है। तो ऐसे ही हम परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में सुनते हैं। तो महाराज जी का प्रभुपाद मैन जैसा हम सुनते हैं, बहुत ही कम भक्त है जिसके बारे में हम लोग ऐसा सुनते हैं कि ये जो व्यक्ति है इस श्रील प्रभुपाद मैन। जैसे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में हम सुनते हैं, प्रभुपाद के राइट हैंड मैन थे, या फिर परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज के बारे में सुनते हैं, प्रभुपाद मैन। तो ऐसे कुछ भक्तों में गोपाल कृष्ण महाराज का नाम हमेशा सुनते हैं कि ये जो है प्रभुपाद जी के एकदम निकट के एक भक्त थे। तो महाराज जी के बारे में हम सुनते हैं कि महाराज जी का जो जन्म था वो एकादशी के दिन हुआ था, और महाराज जी का जो डिसअपियरेंस द्वादशी के दिन हुआ था। तो 14 अगस्त 1944, 14 अगस्त 1944 में अन्नदा एकादशी के दिन उनका जन्म हुआ था, और माता पिता ने उनका नाम रखा था गोपाल कृष्ण। तो बचपन से ही एक वैष्णव, बहुत अच्छे संस्कार। तो इसलिए प्रभुपाद जी से जब उन्होंने दीक्षा लिया तो प्रभुपाद ने नाम पूछा, आपका नाम क्या है? तो कहा गोपाल कृष्ण। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मुझे नाम बदलने का कुछ ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आपका जो वैष्णव नाम है गोपाल कृष्ण, तो मैं केवल एक दास करके उसमें जोड़ देता हूँ। तो इस प्रकार से फिर हम देखते हैं महाराज जी जो थे दिल्ली में उनका जन्म हुआ था, और अपना जो ग्रेजुएशन करने के बाद दिल्ली में महाराज जो है अपना आगे का जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए लंदन गए, उसके बाद वो कनाडा जाते हैं। तो उस समय पर जब प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे, अधिकतर जो प्रभुपाद जी के संपर्क में आए वो विदेशी भक्त थे, और भौतिक दृष्टिकोण से उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड ऐसा कुछ विशेष नहीं था, लेकिन बहुत ही कम भारतीय जो व्यक्ति थे जो प्रभुपाद जी के संपर्क में आए, उसमें से एक थे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। और एक तो भारतीय थे, ऊपर से बहुत ही अच्छे संस्कार के साथ वो आए थे, और तीसरा भौतिक दृष्टिकोण से भी उनका अच्छा क्वालिफिकेशन था जो प्रभुपाद की सेवा में इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस तरीके से जैसे भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज थे, वो भी उसी में से थे। वो एक वैज्ञानिक थे जो प्रभुपाद के संपर्क में आए। तो ऐसे कुछ भारतीय भक्तों में से परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी एक थे। तो इसीलिए बहुत जल्दी ही प्रभुपाद जी ने उनको बहुत सारी जवाबदारी दे दी अपने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में, यहाँ तक कि 35 साल की उम्र में वो जीबीसी बन गए 1975 के आसपास, और प्रभुपाद ने उनको पूरा इंडिया का गवर्निंग बॉडी कमीशन वो बनाया, और फिर बीबीटी का जो ट्रस्टी है। तो आगे चल के फिर सन्यासी बन गए, गुरु बन गए, जीबीसी बन गए। तो इतना सारा जवाबदारी इत्यादि सब होने के बाद पूरे विश्व भर में वो प्रचार करने लगे, और बताते हैं कि जो रशिया, जो सबसे सोवियत यूनियन यूएसएसआर, जो सबसे कठिन देश था प्रचार करना, क्योंकि वहाँ पर भगवत गीता अंदर लेके जाना बहुत डिफ़िकल्ट था। तो इसीलिए जो भी कॉपीज़ वहाँ पर हुआ करता था, तो महाराज जी उसका जेरोक्स निकालते थे, उसको स्टेपल करते थे, और बाद में उसका वितरण करते थे। और वहाँ पर केजीबी का इतना कठिन नियम था कि कोई भी व्यक्ति को अगर किताब वितरण करते समय अगर वो पकड़ा गया, जैसे हम वो सॉल्टेड ब्रेड बुक में पढ़ते हैं,
कि भक्तों को जेल में डालते थे या कभी कभी उनको पागल खाने में भी भेजते थे और अलग अलग उनको इंजेक्शंस देते थे। तो इतना कठिन परिस्थिति था, लेकिन उस समय पर महाराज जी जो थे किसी न किसी तरीके से प्रभुपाद ने कहा है कि रशिया में प्रचार करना है, तो इसीलिए उन्होंने रशिया में प्रचार किया। तो सबसे एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में महाराज जी का सुनते काफ़ी एम्फसाइज था। एक बार महाराज जी चौपाटी मंदिर में आए थे और उन्होंने मैराथन के पहले बहुत ही अच्छा इंस्पायरिंग क्लास दिया कि किस तरीके से हमें प्रभुपाद जी का किताब वितरण करना चाहिए। तो महाराज जी बोलने के बाद फिर परम पूज्य राधानाथ महाराज ने भी अगला 2005 या 6 में महाराज जी ने कहा, तो महाराज जी ने कहा कि इस साल हमें 1 लाख बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके पहले चौपाटी मंदिर का उतना किताब वितरण के ऊपर उतना फोकस नहीं होता था, लेकिन 2005-6 के समय पर जब पहली बार गोपाल कृष्ण महाराज आकर उन्होंने किताब वितरण के लिए इतना मैराथन के लिए भक्तों को कहा, तब राधानाथ महाराज ने कहा कि वी शुड डिस्ट्रीब्यूट 1 लाख बुक्स एंड वी शुड कम लास्ट। तो इस तरीके से ओवरऑल मंदिर का पूरे संस्था का जो किताब वितरण है वो बहुत अच्छे से बनेगा, क्योंकि लोगों को लगेगा कि गोपाल कृष्ण महाराज आए थे और हमने किया। तो इसलिए तब से वो एक 1 लाख का जो चौपाटी मंदिर का जो स्कोर है, तब से वो 2006-07 तो हर साल उसके बाद से हमारा 1 लाख वो स्टार्ट हो गया टारगेट। तो इस तरीके से हम देखते हैं महाराज जी स्वयं किताब वितरण करते थे और विश्व भर में जहाँ पर भी जाते थे भक्तों को प्रेरणा देते थे किताब वितरण करने के लिए। और जैसे अलग अलग भक्तों ने बताया कि महाराज का एक विशेष चीज़ था, क्योंकि मैं भी अंधेरी में रहता था तो मैं राधा रास बिहारी मंदिर जाता था और कई बार गोपाल कृष्ण महाराज आते थे एयरपोर्ट से और एयरपोर्ट में लैंड करते थे रात को 1 बजे या 2 बजे, लेकिन सवेरे के समय पर ऑल्टर पर मंगल आरती में महाराज आरती करते हुए दिखते थे। तो एक दिन मैं उनके ड्राइवर से बात कर रहा था, तो जस्ट ऐसे बात करते समय ड्राइवर ने बताया कि महाराज जी को मैं 2 बजे लेकर आया और फिर मैं तो जाकर सो गया। बाद में फिर 10 बजे के आसपास मैं उठकर आया और महाराज जी मुझे बोले, आई डिडंट सी यू फॉर मंगल आरती, मैंने आपको मंगल आरती में देखा नहीं। तो ड्राइवर ने बोला, महाराज जी आपको मैं एयरपोर्ट लेने के लिए आया था, तो 2 बजे के आसपास ही मैं सोया। तो महाराज बोले, मैं भी तुम्हारे साथ ही तो तभी आया था, लेकिन मैं तो मंगल आरती में अटेंड कर रहा था। तो ड्राइवर ने कहा, इसलिए महाराज आप है और मैं हूँ, तो इसके लिए। तो महाराज ने बोला, नहीं, अगर आप मंगल आरती नहीं आओगे तो आपको सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। हाँ, तो अगली बार से आप जब भी मुझे लेने आओगे, हाँ, आपको सुबह मंगल आरती आना चाहिए। तो ऐसे करके ड्राइवर हमेशा बताते थे कि महाराज जी का एक चीज़ देखा है कि रात भले ही रात में कौन से ही देश से कितने भी बजे वो आएंगे, लेकिन सुबह उनका जो डेली का था मंगल आरती भगवान का अटेंड करना या श्री श्री राधा रास बिहारी के मंदिर में मंगल आरती करना। और एक चीज़ मैंने महाराज जी का देखा है कि महाराज इज़ वेरी पर्सनल, अर्थात अलग अलग भक्त लोग मंगल आरती और सब होने के बाद मॉर्निंग प्रोग्राम चल के आते थे और जो भी महाराज से मिलते थे महाराज उनको बोलते थे, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो। ऐसे महाराज सबको मिलते थे। और एक चीज़ मैंने सुना है कि महाराज जो है ही इज़ वेरी गुड विथ रिमेंबरिंग नेम्स। बहुत कठिन है मोरे लिए तो कि अरे किसी का हमने मिले हैं एक बार और फिर 6 महीना 1 साल के बाद आप मिलोगे और उस व्यक्ति के नाम को याद रखना। लेकिन अलग अलग भक्तों से हमने ये गुण सुना महाराज के, उनको जो है इज़ वेरी पर्सनल, बहुत ही व्यक्तित्व उनका एक स्वभाव है और लोगों का नाम याद रखते थे। इसलिए हर एक व्यक्ति जो उनसे मिलता था बहुत जल्दी महाराज के साथ कनेक्ट हो जाता था। अरे इतने बड़े व्यक्ति है, इतने गुरु है, सन्यासी है, जीबीसी है, लेकिन मेरा भी नाम वो याद रखते। तो ऐसे कई भक्तों का उनके साथ अनुभव रहा है। और ऐसे हम देखते हैं कि जैसे शरण चमरू बता रहे थे, महाराज का जो एक गुण है कि टॉलरेंस के बारे में, जो सहनशीलता के बारे में हमने सुना। तो एक बार जब प्रभुपाद थे उसी समय पर एक घटना हुई थी कृष्ण बलराम मंदिर या दिल्ली मंदिर में, जहाँ पर कोई व्यक्ति ने महाराज जी के ऊपर बहुत सारा, जैसे जीबीसी थे तो बहुत सारा मैनेजरली ऊपर नीचे होता था और महाराज जी को उसके लिए ब्लेम किया कि आप क्या कर रहे हो, आप जीबीसी हो लेकिन ये जवाबदारी अच्छे से नहीं हो रहा है, यहाँ पर देखो ऐसा है वैसा है, बहुत सारा ये किया। और वो बातों बातों में वो व्यक्ति ने महाराज जी को ऐसे झापड़ ऐसे मार दिया। और महाराज जी का उस समय पर जीबीसी है और पद है उनका, लेकिन फिर भी महाराज जी जो थे एकदम, उन्होंने वापस से उसको रिटेलिएट नहीं किया, एकदम शांति से थे
और ये न्यूज़ प्रभुपाद तक गया कि ऐसे ऐसे भक्त ने गोपाल कृष्ण के ऊपर हाथ से मारा। और फिर प्रभुपाद ने पूछा उनका कैसे रिस्पॉन्स था, तो बोला कि वो एकदम शांत थे। तो प्रभुपाद ने कहा उनके बारे में कि ही ऑलवेज अवॉइड्स वैष्णव अपराध, ही इज़ अ प्योर डिवोटी, गोपाल कृष्ण गोस्वामी, ऐसे करके प्रभुपाद जी ने कहा। तो प्रभुपाद बहुत संतुष्ट थे महाराज जी का ये जो व्यक्तित्व में उनका जो ये गुण था। और ऐसे अलग अलग समय पर कई सारी घटनाएं हैं जहाँ पर महाराज जी का ये सहनशीलता के गुण के बारे में भक्त लोग हमेशा उसको याद रखते हैं। और एक व्यक्ति जो थे वो दिल्ली टेम्पल में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सेवा कर रहे थे, और कुछ तो कारणवश उनके ऊपर ये इल्ज़ाम आया कि वो व्यक्ति जो है पैसा जो है काफ़ी चुरा रहे थे, और अलग अलग डिसीजन था और महाराज जी तक ये पहुंचा, क्योंकि महाराज उनको जानते थे कि ये व्यक्ति जो है मंदिर का जो पैसा है उसको अलग हेरा फेरी से चुरा रहे करके। तो महाराज जी को पूछा, महाराज जी आपका क्या ओपिनियन है? सब भक्तों ने बोला इसको निकाल दो, इसको निकाल दो। और फिर महाराज जी ने कहा उसको बुला कर, तुम्हारा पगार कितना है? तो बोले महाराज जी 15,000 रुपये है। तो प्रेसिडेंट को बुलाया, बोले आज से इसका पगार 45,000 कर दो, 3 टाइम्स। तो बोले अरे इससे क्या होगा? बोले इसको पैसे की कमी है, उसके वजह से वो मंदिर से पैसा चुरा रहे, तो उसको हम पगार जो है बढ़ा देंगे। तो ये जो मैनेजमेंट, उन्होंने बोला अरे हम लोग तो ये दृष्टिकोण से कभी सोचते नहीं है। फिर वो भक्त जो है उससे बात किया और वो एकदम संतुष्ट हो गए। और तब से आज तक जैसे शिवानंद स्वामी बता रहे थे कि महाराज का हमेशा है कि ये व्यक्ति को सेवा से निकालना नहीं है, देखना है कि किस कारणवश वो कुछ अगर गड़बड़ कर रहा है। हाँ, अगर मुंबई में कुछ उसने कुछ गड़बड़ किया तो उसको विशाखापट्टनम भेजते थे, विशाखापट्टनम में कुछ हो गया तो उसको पूरी भेजते थे। तो जहाँ पर भी अलग अलग सेंटरों में जहाँ पर महाराज के निर्देशन के अनुसार कार्य चलता है, वहाँ पर अलग अलग भक्तों को ऐसे कई सारे घटनाएं में हमने सुना है। और गौराम को एक चीज़ बताते हैं कि जब प्रभुपाद जी जाने के बाद 1970 1980s जो था वो इस्कॉन के लिए बहुत ही कठिन समय था, क्योंकि बहुत सारे लीडरों के वजह से बहुत सारा ऊपर नीचे हो रहा था। तो उस समय पर कई सारे लोगों का जो श्रद्धा था उसके ऊपर बहुत सारा ठेस पहुंच रही थी। तो 1980 के समय पर इस्कॉन बहुत ही उतार चढ़ाव के इसमें जा रहा था, लेकिन खासकर उस समय पर जो इस्कॉन इंडिया था वहाँ पर परम पूज्य जयपताका महाराज, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, परम पूज्य राधानाथ महाराज, ऐसे 4-5 सन्यासी थे। उन्होंने इस्कॉन इंडिया को पूरा उठा के रखा था। अदरवाइज ऐसा एक समय था जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि पूरा संस्था जो है बिखर जाएगा 80s और 90s के समय पर। तो ऐसा विशेष योगदान जो है महाराज जी ने किया है। तो ऐसे बहुत सारे गुणों के बारे में हम महाराज जी का देखते हैं। तो इसीलिए बताते हैं कि महाराज जो थे इज़ लाइक सरेंडर टू श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद जी के लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार रहते थे। तो ऐसे हम महाराज जी के चरणों पर प्रार्थना कर सकते हैं, जिस तरीके से उनका श्रील प्रभुपाद के प्रति जो शरणागति की भावना थी, हम भी उनकी तरह तो नहीं, लेकिन उनका जो 0.1% जो गुण है वो हमें उनसे सीख सकते हैं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। एक्चुअली एक शिष्य के जीवन में ये सबसे कठिन समय है कि अगर गुरु जब चले जाते हैं, मतलब ये व्यक्ति वही समझ सकता है जिसके गुरु नहीं, मतलब कि उसको क्या फीलिंग्स हो रही है, क्या वो होता है। जैसे प्रभुपाद जब चले गए तो प्रभुपाद के शिष्य सोच रहे थे कि उनका पूरा दुनिया शून्यायते जगत सर्वम गोविंद विरह में। तो एक्चुअली लेकिन हर एक शिष्य को इस परिस्थिति से गुजरना पड़ता है, और ये जो परिस्थिति है बहुत ही कठिन है, बहुत ही दुखदायक है। लेकिन अगर शिष्य गुरु के दिए हुए आदेशों का जब अपने जीवन में पालन करता है तो गुरु को कभी मिस नहीं करता है। हम भागवत में भी देखते हैं कि जब अर्जुन भगवान चले गए तो अर्जुन ने भगवान के जो गीता के हुए संदेश उनका स्मरण करते करते ऐसा लगा कि वो मेरे साथ अभी भी है। गोपाल कृष्ण महाराज की जय। तो मेरा यह भाग्य है कि महाराज जैसे शुद्ध भक्त के बारे में बोलने का अवसर प्रदान हुआ है, और जैसे कि बहुत सारे भक्तों ने महाराज जी के बारे में बताया। तो जो व्यक्ति अपने शरीर के लिए
अपना जीवन व्यर्थ करता है, अपने शरीर के लिए अपना सब कुछ देता है, उस व्यक्ति को सांसारिक व्यक्ति कहते हैं, क्योंकि उसके जीवन में केवल संसार और उसका शरीर, केवल उसका जो जीवन है वो इम्पोर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति देश के लिए अपना सर्वस्व दे देता है, उसको हम शहीद कहते हैं ना, इन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, तो हम शहीदों को बहुत आदर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दूसरे जो लोग हैं, जो इस दुनिया के, जो इंग्लिश में बोलते हैं कंडीशन सोल, जो जीवात्मा हैं, उनके उद्धार हेतु अपना जीवन सर्वस्व करते हैं, ऐसे लोग को साधु संत कहते हैं। और गोपाल कृष्ण महाराज की जीवनी में हम देखते हैं कि किस प्रकार से उनका पूरा जीवन केवल दूसरों के लिए था। उनके जीवन में खुद के लिए कुछ नहीं था, केवल वो दूसरों को दे रहे थे। बहुत साल पहले मैं उनके सर्वेंट को मिला, तो उनके सर्वेंट प्रभु जी बता रहे थे कि महाराज का जो शेड्यूल है, महाराज बहुत जल्दी 2-3 बजे उठ जाते हैं, फिर अपना कार्य करते हैं, जब करते हैं थोड़ा, और फिर कोई भी मंदिर में कहाँ भी हो वो वहाँ पे मंगल आरती करते हैं, और मंगल आरती करने के बाद तुलसी आरती तक आते हैं, फिर तुलसी आरती में जल दान करते हैं, और फिर तत्पश्चात अपने रूम में जाते हैं, डीटी वर्शिप करते हैं, और फिर 1 घंटा वॉकिंग करते हैं, जपा भी करते हैं, वहाँ जपा वॉक जो प्रभुपाद जी करते थे, और फिर उसके बाद श्रृंगार आरती में आएंगे, दर्शन करेंगे, और फिर उनके बाद उनका दिनचर्या शुरू होता है। तो उनका पूरा जीवन केवल दूसरों के लिए। तो ये एक शुद्ध भक्त का लक्षण है। जैसे हम शास्त्र में कहा जाता है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे भाई भक्ति लता बीज। तो ऐसा एक अहो हमारा सौभाग्य है कि हमारे जीवन में हमको ऐसे आचार्यों के दर्शन हुए, उनसे सुनने का अवसर हुआ, और विशेष करके जो उनके अनुयायी हैं, उनके जो शिष्य हैं, उनको उनका विशेष संग प्राप्त हुआ, उनसे सीखने को ये अवसर प्राप्त हुआ। ये बहुत ही बड़ा उनका एक विशेष योगदान है। तो बहुत सारे भक्तों ने महाराज जी के बारे में कहा कि उनका जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, उनकी जो साधना है, विशेष करके जो मंगल आरती करने का जो उनके बारे में सबने बताया है। मैं एक पास टाइम बताना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को मालूम है गोपाल कृष्ण महाराज अगर इस मंदिर में हो तो मंगल आरती में जरूर आएंगे। और यहाँ तक के पिछले 2 महीने पहले महाराज जी को मैंने देखा था, तो महाराज का हाथ नहीं उठता है, लेकिन फिर भी महाराज इस वृद्ध अवस्था में महाराज आरती करते थे और सभी को उत्साह देते थे। तो एक बार की बात है, महाराज अमेरिका में थे, और अमेरिका में आपको मालूम है वहाँ पे एक ब्रुकलिन मंदिर है, जो प्रभुपाद जी के समय का एक मंदिर है, बहुत ही अद्भुत मंदिर है, राधा गोविंद जी के विग्रह है। तो उस मंदिर में थोड़ा कोर्ट केस वगैरह चला, लेकिन उस मंदिर में गेस्ट हाउस नहीं था। और गोपाल कृष्ण महाराज जब यूएस आए तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि वहां पे वो सुबह आए और मंगल आरती में आरती करें। लेकिन वहां के भक्तों ने बताया कि महाराज जी हमारा सौभाग्य है, लेकिन क्षमा करना यहाँ पे कोई रूम ही नहीं है। तो भक्तों ने कहा महाराज पास ही में एक होटल है, हम आपका उधर अरेंजमेंट कर देंगे, आप वहां रुक जाइए और हम आपको सुबह पिकअप करेंगे, आप आ जाइए। महाराज ने बोला नहीं, मैं यहीं पे रहूंगा, और वहां पे डॉर्मेट्री में वो रहे, बाकी भक्तों के साथ कॉमन वॉशरूम वाला जो फैसिलिटी है उसमें रहे, लेकिन होटल में नहीं रहे वो। और वहीं पे उन्होंने सुबह उठ के मंगल आरती करके पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम किया। एक भक्त बता रहे थे कि महाराज इतने बड़े बड़े लोगों को प्रचार कर रहे हैं, दिल्ली के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े बिजनेसमैन को महाराज जानते हैं, कितने लोग महाराज के पास आते हैं, और कितने सारे महाराज जी के शिष्य हैं, उनके पास बड़ा बड़ा घर है, लेकिन कभी महाराज वहाँ नहीं रुके। कभी भी कितना भी लेट हो, महाराज आए सुबह और अपना मॉर्निंग प्रोग्राम में आरती करते थे, ड्यूटीज को ये करते थे। और सुंदर सुंदर महाराज के पास शिलाएं हैं, उनके महाराज विग्रह की सेवा करते थे। तो दूसरा पॉइंट मैं कहना चाहता था, महाराज का जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हमारे हरि गोपाल प्रभु ने महाराज के प्रणति में ही कहा है, उनके प्रणति में ही शास्त्र के ऊपर कहा है कि किस प्रकार से महाराज शास्त्र के बारे में और विशेष करके शास्त्र को वितरित करने के ऊपर कितना उनका फोकस है। एक बार जैसे कि प्रेमानंद प्रभु बता रहे थे कि महाराज जीबीसी है, ब्यूरो मेंबर है, फिर अनेक महाराज के ऊपर जवाबदारियां हैं। तो एक भक्त ने महाराज को पूछा कि महाराज एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, दिसंबर का महीना था, क्या हम मीटिंग कर सकते हैं क्या?
तो महाराज ने कहा कि वैसे तो मेरा जीवन ही मीटिंग है। अगर जो गोपाल कृष्ण महाराज को जानते हैं, सुबह 8 बजे से कंटिन्यूस उनका मीटिंग चलता है। कुछ ऑफिशियल मीटिंग होता है, कुछ पर्सनल मीटिंग होता है, फिर भक्तों को मिलते हैं, तो कंटिन्यूस उसका मीटिंग चलता ही था। लेकिन महाराज ने उस समय कहा कि ये दिसंबर का महीना है, कृपा मुझे क्षमा कीजिए कि मैं पूरे हमारे सभी भक्तों को दिल्ली में, पूना में, पूरे विश्व भर में मैं सबको इंस्पायर करता हूँ कि आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, लेकिन मैं अगर सेनापति हूँ तो मेरा भी कर्तव्य है कि मुझको भी कुछ करना चाहिए। तो मेरा बहुत सारा शेड्यूल है, मैं यहाँ पर हूँ, तो कृपा करके मीटिंग हम बाद में कर सकते हैं। तो ये महाराज की नम्रता है और किस प्रकार से महाराज अपने ही उदाहरण से बता रहे हैं। जैसे कि पूना का एक ज्वलंत उदाहरण है। पिछले काफ़ी सालों से पूना बुक डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर 1 है और उसका पूरा श्रेय जाता है गोपाल कृष्ण महाराज को कि उन्होंने उनके बहुत सारे अनुयायियों को इतना उन्होंने प्रोत्साहन दिया है कि हर साल खुद महाराज वहाँ पर आते हैं और मैराथन के पहले आते हैं, मैराथन के बाद में आते हैं, मैराथन के बीच में रोज अपडेट लेते हैं और हर साल 5 लाख के ऊपर वो लोग गीता वितरित करते हैं। तो ये विशेष महाराज जी की कृपा है। महाराज जी बीबीडी ट्रस्टी हैं और गौरांग प्रभु बता रहे थे कि जब से महाराज ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन और ये जो सेवा महाराज ने ली है, पूरे विश्व भर को इतना महाराज ने प्रोत्साहित किया है कि ऐसा कहा जाता है कि इतने सालों में इस्कॉन ने 50 करोड़ से भी ज़्यादा भगवत गीता का वितरित किया है। और इतना डिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ ही है, साथ ही साथ लोगों को जुड़े हैं, लोगों को प्रचार किया है और साथ ही साथ दिल्ली में रहने, जो इंडिया का कैपिटल है, महाराज ने 1970 से लेके अब तक जितने भी प्रधानमंत्री आए और प्रेसिडेंट आए, महाराज उनको मिले, उनको गीता दी है और उनके साथ संपर्क जुड़ा है। और जैसे उसका ज्वलंत उदाहरण क्या है, जैसे ही महाराज जी का न्यूज़ आया, मोदी जी ने ट्वीट किया, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ने अलग अलग जगह के उन्होंने ट्वीट किया और प्रेसिडेंट जी ने ट्वीट किया। तो इस प्रकार से जो महाराज का जो इम्पैक्ट है, पूरे विश्व भर के जो सबसे पावरफुल लोग हैं वो उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। तो ये बहुत ही विशेष खासियत है महाराज की। और अगर आपने महाराज जी का प्रवचन कभी सुना होगा, महाराज भी प्रभुपाद जी से बहुत सिंपल लेक्चर देते थे। आप भगवत गीता पढ़िए, 4 नियम का पालन कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और अपना जीवन सफल कीजिए, इतना ही बोलते थे। और महाराज यही चीज़ बताते थे और इतना वो मीठा लगता था और हर व्यक्ति उनसे आकर्षित हो जाता था। तीसरा गुण जो महाराज का मेरे जीवन में बहुत प्रभावित हुआ वो है सरलता। सरस्वती ठाकुर हमेशा कहते हैं कि वैष्णव का जो गुण है वो क्या है? सरलता ही वैष्णव आचरण, वास्तविक में सिंप्लिसिटी। और ये महाराज की सिंप्लिसिटी थी। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, मुझे याद है, गोवर्धन इको विलेज में पहली बार आए थे 2014 में। आई थिंक 7 या 8 सितंबर था वो 2014। तभी पहली बार यहाँ पे WIDC मीटिंग थी। मैं जरूर ठाकुर प्रभु उस समय गेस्ट सेवा करते थे और हमारे एक्सपीरियंस का ये सबसे पहला एक्सपीरियंस था जहाँ पर इस्कॉन के एक साथ बहुत सारे सन्यासी और प्रॉपर डिसाइपल एक साथ आए थे उस दिन। और WIDC का हमने सब अरेंजमेंट किया था और हमने सब रूम एलोकेशन किया था कि ये रूम में जो सुमति नंदन प्रभु रहेंगे, ये रूम में ये महाराज रहेंगे, ये रूम में ये महाराज रहेंगे। और गोपाल कृष्ण महाराज का वृंदावन रूम नंबर 4 हमने रेडी किया था। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार हमने रूम साफ सफाई किया था। और साफ सफाई करने के बाद हम रेडी थे और हम लोग रेडी थे कि अभी महाराज कभी आएंगे। तो फिर उनके सर्वेंट से कोऑर्डिनेशन था। तो फिर एक भक्त गेट पे था, महाराज को रिसीव करके यहाँ पे लेके आ रहे थे। तो उस समय और एक महाराज आ गए, तो मैं जरा दूसरी जगह चला गया, जरूर ठाकुर प्रभु और कोई सेवा में व्यस्त थे और हमने सोचा कि रूम तो सब रेडी है, चाबी भी खुला है, महाराज आ जाएंगे तो हम सीधा दरवाजा खोल के महाराज को लेके जाएंगे अंदर। तो जैसे ही गोपाल कृष्ण महाराज आए, हम यहाँ पे मिले, गार्डन डाला, दंडवत किया। जरूर ठाकुर प्रभु ने मुझको कहा रूम रेडी है, रेडी है। गए अंदर, तो जैसे रूम खोला, कोई तो एक दूसरा व्यक्ति उधर फ्रेश हो रहा था, मतलब कपड़े वपड़े चेंज कर रहा था। तो हम लोग बड़े परेशान हो गए, अरे बाप रे क्या हो गया। गोपाल कृष्ण महाराज बाहर खड़े हैं और कोई तो XYZ व्यक्ति, ऐसा नहीं कि कौन था हमको नहीं मालूम, हम लोग मैं जरूर ठाकुर प्रभु का चेहरा देख रहा हूँ, मेरा चेहरा देख रहा है। मैं बोला भाई मेरे को नहीं मालूम। फिर
यहाँ पर वो सर्वेंट बोल रहे हैं कौन सा रूम है, कौन सा रूम है, बोला यही रूम है। वो व्यक्ति को बोला जरा भाई 1 मिनट हम लोग जरा ये करते। तो महाराज को तभी वॉशरूम जाना था, महाराज ने कुछ नहीं बोला। ऐसा सोचिए आप एक कोई गेस्ट है और आपके रूम में कोई दूसरा व्यक्ति है, तो सबसे पहला प्रश्न है कि यार ये क्या मैनेजमेंट है, मेरा रूम कौन सा है, मैं इधर नहीं रहूंगा, XYZ। महाराज ने कुछ नहीं बोला। महाराज बोले वॉशरूम किधर है, हमने बोला महाराज यहाँ है। चुपचाप महाराज आए, एक शब्द नहीं बोले, वॉशरूम यूज किया, आए। तब तक हमने वो भक्त को बोला आप बाहर आइए, हम आपको दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। तुरंत एक शब्द महाराज ने कुछ नहीं बोला और तुरंत महाराज ने बोला मीटिंग कहाँ है, यही शब्द बोला। 2 मिनट में महाराज गए, मीटिंग आए। मीटिंग के आने के बाद हम लोग बोले अभी कुछ बोलेंगे ना, उनके सर्वेंट ने कुछ कहा ना महाराज ने कुछ कहा। मतलब पूरा उनका जीवन जो है वो दूसरों के लिए, खुद के लिए कुछ नहीं। और फिर उसी दिन महाराज जी चले गए। तो मैं सोच रहा था कि क्या सरलता है महाराज का। तो ये पहला हमारा इंटरेक्शन था। उसके बाद 2015 में जीबीसी मीटिंग अक्टूबर, महाराज का प्लानिंग था यहाँ पे आना और हम लोग का गौरव प्रभु के साथ मीटिंग हुआ था। तो गौरव प्रभु के साथ हमारा जब भी डिस्कशन हुआ तभी गौरव प्रभु ने हमको क्लियर बताया था कि महाराज जी मीटिंग के लिए आएंगे लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि मीरा रोड में जस्ट मंदिर बना था। देखिए महाराज का क्या कंपैशन है, नया मंदिर बना है, वहां के लीडर्स को टाइम देना है, वहां के कांग्रीगेशन को टाइम देना है। सोचिए 15 दिन की मीटिंग में एवरी डे महाराज यहाँ से जाते थे, शाम को मीटिंग होने के बाद 6-7 बजे, और वहां से जाके यहाँ आते थे। मतलब 2 घंटा जाना, शाम को क्लास देना, मीटिंग करना, रात को वहाँ रहना, सुबह मंगल आरती डीटी वर्शिप करके वहाँ से आना, दिन भर मीटिंग अटेंड करना। तो उस समय हमारे पास इतने रूम्स नहीं थे, तो उनके डिसाइपल से और उन सबसे बात करके हमने उस समय गोकुल का रूम रखा था, क्योंकि महाराज केवल दिन में रहेंगे करके। तो केवल उस परिस्थिति में भी मतलब महाराज आए, एक पहले दिन उन्होंने मतलब सामान वामान रखा था और फिर वो वहाँ पे गए। तो उस समय भी महाराज ने बोला इतना छोटा रूम, यहाँ एसी नहीं है, अटैच, उस समय गोकुल कॉटेज में अटैच बाथरूम भी नहीं था, कुछ नहीं। गए अपने रूम में और अपना बैग लिया, सामान लिया, मीटिंग के लिए आ गए। जैसे ही परम पूज्य राधानंद महाराज जी को पता चला कि महाराज आए, जनरली महाराज का एक खासियत है, जैसे उनके गॉड ब्रदर आए तो महाराज पूछते हैं कि कैसे हो, ठीक है ना, सब कुछ ठीक है ना, 5 स्टार फैसिलिटी रखा है ना हाथों में। फिर महाराज को महाराज ने पूछा तो हमने बताया कि ऐसा ऐसा उन्होंने चूज किया था। तो महाराज ने बोला इतने सीनियर मेरे गुरु भाई हैं, आप ऐसा कैसा कर सकते हैं, तुरंत आप मेरा सामान निकालो और मेरे रूम में उनको डालो और मैं उनके रूम में चले जाता हूँ। तो ये महाराज का और विशेष करके उनका आदान प्रदान है एक दूसरे के। तो ये सरलता का विशेष मुझको एक अनुभव मिला। चौथा पॉइंट जो मैं शेयर करना चाहता था कि महाराज का अपने शिष्यों के प्रति और भक्तों के प्रति जो विशेष प्रेम है। किसी भी जगह महाराज जाते, जैसे बताया था कि महाराज रशिया में जीबीसी है, केनिया में है, ईस्ट अफ्रीका में है, ऑलमोस्ट फुल नॉर्थ इंडिया में है, जुहू में है, खारगर में है। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व है, इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के साथ महाराज का पर्सनल रिलेशनशिप है। मैंने कितने ब्रह्मचारी को देखा है जो ब्रह्मचर्य आश्रम में केवल 3-4 साल आश्रम में है, वो भी डायरेक्ट महाराज को कॉल करते कि महाराज ऐसा हुआ, मेरे को ये हुआ। और मैंने कितनी बार ऐसा देखा कि उस व्यक्ति के जीवन में कोई दिक्कत हुई कि टेम्पल में कुछ उसका प्रॉब्लम हुआ, महाराज बोलता है कोई दिक्कत नहीं, आप मुझको दिल्ली में आकर मिलो। फिर महाराज उसके साथ बात करेंगे क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम। फिर महाराज उसको बोलेंगे ठीक है आप इस मंदिर में जाओ, वहाँ पे जाओ। अगर वो व्यक्ति टेम्पल प्रेसिडेंट है और गलती से उसने कुछ कार्य किया तो महाराज उसको दूसरे मंदिर में भी टेम्पल प्रेसिडेंट बनाएंगे। मतलब उस व्यक्ति को इतना प्रेम देंगे, उतना सपोर्ट देंगे। जैसे हरि गोपाल प्रभु ने एग्जाम्पल दिया, एक व्यक्ति का सैलरी 15,000 था, उसने कुछ गलती की, महाराज ने बोला उसका सैलरी 45,000 कर दो। तो ये महाराज की महानता है और किस प्रकार से वो एक दूसरे को और मैं दिल्ली में काफ़ी भक्तों को बहुत ही निकट से जानता हूँ, हमेशा कहते हैं कि महाराज इतने कृपालु है। गृहस्थ डिवोटीज, ब्रह्मचारी डिवोटीज, ऐसा नहीं कि केवल ब्रह्मचारी को समय देते, कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति है जो आज ही उसने जप शुरू किया, बहुत सारे लोग आते हैं महाराज जी आज उन्होंने जप शुरू किया, महाराज पूछेंगे अच्छा कैसा है, क्या नाम है, कहाँ से हो, अच्छा यहाँ से हो, फिर महाराज प्रदान करेंगे।
आज से 5-6 महीने पहले मैं मीरा रोड में था, तो मॉर्निंग प्रोग्राम में मैं मीरा रोड टेम्पल में था, और टेम्पल के बाद डीटी वर्शिप के बाद महाराज आते हैं और तुलसी आरती में जल दे के जाते हैं। तो वहीं पे मैं तुलसी आरती में था, महाराज जी को दंडवत किया और मैं साइड में खड़ा था। तो वहाँ के जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे और जो मैनेजमेंट वाले थे, उन्होंने मेरे मतलब महाराज खुद मेरे पास चल के आए। मैं साइड में खड़ा था, महाराज खुद मेरे पास चल के आए और फिर जो टेम्पल के प्रेसिडेंट थे और वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि महाराज जी गोवर्धन इको विलेज से। तो उन्होंने तुरंत बोला हाँ मैं आया था। तो मैंने फिर उनको और बताया कि महाराज ये हुआ वो हुआ। तो महाराज बोला गोवर्धन इको विलेज इज अ वेरी अमेजिंग प्लेस, आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन आई केम देयर। फिर किसी ने कहा कि महाराज अभी इनकी सेवा किचन में है। तो महाराज ने बोला वेरी गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस, प्रभुपाद लाइक्ड इट। तो मतलब कोई भी व्यक्ति हो, महाराज उसको जाने न जाने, लेकिन कितना भी व्यस्त हो, महाराज उसको अपना समय देते हैं। तो ये मैं शेयर करना चाहता था कि किस प्रकार से महाराज ने अनगिनत लोगों के हृदय को स्पर्श किया है और अपने जीवन को परिवर्तन किया है, और कितने लोगों का आज हृदय टूटा है, क्योंकि अचानक से ऐसे महानुभाव शुद्ध भक्त जो इतना संग दे रहे हैं और अचानक आज नहीं है हमारे साथ, तो ये हम समझ नहीं सकते। लेकिन जैसे कहा जाता है कि जो गुरु है वो अपने वाणी में मौजूद है, और जैसे कि उनके डिसाइपल्स लोगों को महाराज ने एक विल के रूप में सब कुछ क्लियर कर दिया है कि आप अपने जीवन में प्रभुपाद को हमेशा प्रायोरिटी दीजिए, इस्कॉन को प्रायोरिटी दीजिए, और हमेशा मिलजुल के रहिए। कुछ भी हुआ जीबीसी अथॉरिटी है, तो उन्होंने जो भी इंस्ट्रक्शन है सब दे दिया। और हाल ही में अभी महाराज बहुत सीरियस थे, जब ये सीरियस थे तभी एक भक्त ने महाराज को पूछा कि महाराज आप बहुत बीमार हैं, हम क्या दवाई लाए, हम क्या करें आपके लिए। महाराज ने कहा कि मेरे लिए सबसे जरूरी दवाई क्या है कि मेरे जो शिष्य है वो अच्छे से 16 माला का जप करे, प्रभुपाद पुस्तकों का अध्ययन करे और प्रभुपाद के मिशन के लिए सेवा करे, यही मेरे लिए मेडिसिन है। तो यही चीज़ मैं बोल के विराम देना चाहूँगा कि महाराज जी के जीवन में उन्होंने अपने व्यक्तित्व से बताया कि वास्तव में वैष्णव कौन है और किस प्रकार से उनका करुणा भाव से उन्होंने पूरे विश्व भर को प्रभावित किया है। तो आज के दिन मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि महाराज के इस समुद्र जैसे गुणों में से कुछ गुण मेरे पे आए और हम सब पे आए और हमारा जीवन सफल हो जाए। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। To be among all of the assembled devotees here. Gopal Krishna Maharaj is something, a very high spiritual personality who is the first sannyasi of ISKCON whom I met, and also the first person, I would say, whom I saw built the ISKCON Delhi temple 1998. I have known him since my childhood because I'm from Delhi, and I remember his merciful glances and all his appreciation that as kids what we used to do, and he would appreciate it just with a gentle smile. It was very, very encouraging for us to uplift in our devotional life. And those small how you say, those small gestures actually kept us going in our devotional life. And his simplicity is something has actually taken over my heart. There was often a time then I remember when the Pradipasadi temple had not come up yet. It was back in 80s and 90s, when sometimes devotees wanted to actually speak about different other aspects of different other temple, other subject topics. And Maharaj was always consistent that we should stick to Bhagavad Gita. All the congregation programs, his point was like we should stick to Bhagavad Gita, and that's what something like, but that really came from Prabhupada. As we know, Maharaj was he did his higher studies in abroad, but though he was such highly educated person, he kept the Krishna conscious philosophy so simple and sublime for anybody to come and take into that. And that was something very, very commendable for me personally,
for such a person of such a high caliber of both material and spiritual, he kept the spiritual process very simple for anyone to follow. And that was something very, very encouraging, even for a very small person who was coming. Oh, yes, Krishna consciousness is doable. There were not many don'ts, but there were do's for us to follow in our lives. So that was something like how Prabhupada encouraged when he was preaching in the West. And I have seen under his dictatorship, under his leadership, when the Radha Pasavati temple came in 1998, I was in school that time, young girl, and we were all happily serving there in the temple, and that was the first temple in Delhi which came up. Now we see there are many temples have come up, and as one of the Prabhus was mentioning that one of the biggest Rath Yatra in the northern belt was the Ludhiana Rath Yatra, and after the Delhi temple came in, the Delhi Rath Yatra, which used to be in November in Chandni Chowk, that area, that became the biggest. So another devotee was glorifying, so many devotees came and gone in the GBC. So he is the only GBC person who is GBC for last 50 plus years. Prabhupada appointed him as the GBC for India in 1973 or something, I believe. Since then, he never gave up. So one of their quality, you can see that, like Prabhupada used to push the devotees. So devotees were expressing their own personal experience, how Maharaj, like Sri Guru Charan Prabhu told about, from 5 crores, 15 to 25 to 75. Told, they gently push us you. They never take rest themselves, and they don't allow us to also, because we become, some people are telling that you are, the laziness. You are too lazy or you are in Maya. This is Maharaj used to tell them, just as them. And by his personal example, like every day, I still remember when I went first time to Vrindavan. So that was my first remembrance of seeing him. He was doing Krishna Balram Arati, Mangala Arati. Every day he is coming and doing in the Kartik month. So that time I was not so aware of many things, but we can see that even till his last breath, they were following that meticulous schedule of sadhana. So he was also giving one of his instructions to disciples was that what is meant by attentive chanting is not only chanting 16 rounds attentively, but also not to make any offenses against the Vaishnavas. So we can see that from Baba Vishnu Maharaj, Goswami Maharaj personal life, that it is the only hope for us is to trying to please our Gurudev. Another devotee was mentioning the morning that I think Tamal Vishnu Maharaj was telling that Tamal Vishnu Maharaj was telling Baba Vishnu Maharaj that Maharaj, you are always defensive. I am always offensive. So you never offend anybody in your, even Gauram also once told in our meeting that they are never offensive, they are in defensive in the meetings. So after attending so many meetings, so many issues, they keep fighting for Prabhupada's, protecting Prabhupada's ISKCON. I have only one dream, means Prabhupada's ISKCON has to be protected, and that is the instruction given. If many of you might have gone through the social media as what his last will, that what is his instruction to his disciples? You should always be obedient to the authority of ISKCON. Should never associate with anybody who deviating or is not authorized by the GBC. GBC is the ultimate authority, you abide by that. Even for the Samadhi, some of his disciples had got a plot for him. But again he told, my Samadhi should be in the Samadhi area where other God brothers are already resting. So such an exemplary life we can see that. So they are not driven by any personal achievement or any personal desire. They are all driven by how to please Srila Prabhupada. Even in book distribution in 76 or something, Prabhupada told him that you should go to Moscow, to Russia. And before that, he has been told, when he been appointed as a GBC in India, he told you should increase the book distribution in India. So he made a bookstall in one of the leading bookstalls in Delhi, where at that time Times and Reader's Digest and all these magazines were selling. So he kept over there the books. All Prabhupada books were displayed. Nothing was working out. So he went back to
Prabhupada told, there is not much progress. Prabhupada told, my books only will be sold when my devotees enthusiastically distribute it. Taking that as his life and soul, when he told to go to Russia, he went there, he set up in the International Book Fair, they put up the book, they got certificate from the communist regime that time. It was Soviet Union. They got a certificate appreciating the books of Prabhupada. And he came and offered to Prabhupada. He was very happy. And since then, so when we met one of the senior devotees of his, in Delhi, he was saying that it was his priority. Whoever is a temple resident brahmacharis, their first priority is go out and do book distribution. And for any other things we can get paid employees or paid devotees also. But for book distribution, that was one of the top priority, and we can see the result. The book distribution scores comes through in the December marathon. Delhi, Pune, Jaipur. These are the only 3 names we can think about. So I don't take much time. Only for last 2 days I was meditating. One thing was that what we can learn from such devotees' life is that how we need to also, imbibe, to Guru Nishtha. How we can also follow in their footsteps. Like what Prabhupada told, Prabhupada exemplified in his own life to fulfill the desire of his Guru Maharaj. You can see another Acharya is following the same thing. To pleasing the Guru. Worshipping the Guru by executing his orders. That is the only way we can get Krishna's mercy. So, one senior devotee was telling that Gopala Krishna used to get whatever he needs because of his simplicity and selfless services. He won the heart of all the devotees, especially in Indian ISKCON leadership. He wanted to actually resign from the bureau chairmanship and all those things, but the devotees unanimously again voted him. You be the, because any trouble comes, it is everybody accepts him as the authority. So that is not, so devotees were telling it is not naturally, it is not something being conferred, like it's taken by him, snatched away from somebody that position. It was naturally earned by his behavior and his dedication to Prabhupada. Another devotee in his offering was telling that one day, it was maybe in 82, 83 that time, that another Sri Prabhupada's senior disciple, so Gopalkrishna Maharaj and another devotee was going for a prasad. The other devotee was coming out from the prasadam hall and he gave a slap to Gopalkrishna Maharaj. And one of his disciples was telling that time small blood was also coming, but he never complained, he didn't argue or anything with him. He just politely left and went for the prasadam. And later on, when that devotee was in a critical stage in Vrindavan, he extended all the facilities, all the support in his last days. So these are the exemplary life we can learn from the Acharyas. In Hari Bhakti Vilas says that Prathamam tu Guru Pujya Tatascha Yesha Mamarchana. Krishna is telling that don't worship me, first you worship your Guru, means Acharyas. Purya Siddhim Avapnodi Anyatha Nishpalam. Means if you are trying to please or you worship the Guru, then only you will get all your siddhi, means whatever endeavors have been fulfilled. And we can see from their life, whatever they touch upon, whatever project they take up, all are in a wonderful offering to Srila Prabhupada. So we can also pray on this auspicious day that we also imbibe that quality of keeping aside our own priorities or our own motives. And only one motive is to please Srila Prabhupada and our Gurus in the same mode as what they exemplified in their life. His Holiness Gopala Krishna Goswami Maharaj ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai. Thank you so much, Vasudev. ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिन्निति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश्य वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वतीति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सांभोदे पादामुजायते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्भाव भूमे स्वं निर्देष्टा सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते जयतां सुरतो पंगो मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनौ दिव्यवृन्दारण्य कल्पद्रुमाधः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीरगोविन्ददेवौ प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशी वटतटस्थितः कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथः श्रियेस्तु नः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश्य वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः एष पुष्पांजलिः परम पूज्य श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की सभी दंडवत करेंगे। प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः एष पुष्पांजलिः परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की पुनः एक बार दंडवत करेंगे। नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश्य वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः एष पुष्पांजलिः परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की रामस्य कल्याणानुनानुवास्य वन्दे गुरोः श्रीचरणरविन्द वन्दे गुरोः महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता वादित मोद्य
Krishna Krishna Hare Hare
Krishna